Hello students, we are doing linear transformation. Till now we have discussed definition of linear transformation along with some numerical based on linear transformation. Again we are continuing with the same numerical on linear transformations. Let P be the vector space of all polynomials over real numbers. Then the function defined as T transformation from P to P. This is on the same P से P तक defined by transformation T of Px. Any polynomial is defined as derivative of polynomial. जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे किसी polynomial पे तो result will be the derivative of polynomial where Px belongs to P is a linear operator. We have discussed that if the transformation is from P to P means same vector space to same vector space P to P, then it is called linear operator, not transformation. So we have to prove that it is a linear operator means linear transformation. So हमें क्या prove करना है that T of U plus V is equal to T of U plus T of V where U belongs to vector space U and second condition is T of AU is equal to A times T of U. So अब यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है वो है polynomials, vector space of all polynomials. So we have to take two elements from the set of polynomials or you can say from vector space of all containing all polynomials. So ux and vx be the two polynomials. तो हम ऑपरेटर ux प्लस vx पे डिफाइन करेंगे और हमें किसके इक्वल चाहिए t ऑफ ux प्लस vx इज इक्वल टू t ऑफ ux प्लस t ऑफ vx. सो जब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन t ऑफ ux प्लस vx पे डिफाइन होगा तो रिजल्ट क्या होगा डेरिवेटिव. सो ट्रांसफॉर्मेशन t ऑफ px इज डेरिवेटिव ऑफ px. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ux प्लस vx इज ddx ऑफ ux प्लस vx. और डिफ्रेंसिएशन को डेरिवेटिव को डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को हम दो अगर आपके पास फंक्शंस अलग अलग हैं तो वी कैन सेपरेट आउट. सो इट इज़ ddx ऑफ ux प्लस ddx ऑफ vx. सो व्हाट इज ddx ऑफ ux? इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ux और यू कैन से लीनियर ऑपरेटर ऑफ ux and ddx of vx is t of vx. So first property proved that t of ux plus vx is equal to t of ux plus t of vx. और second property आपके पास है transformation of a into ux is equal to. अब जब आपके पास t of a ux किस में ट्रांसफॉर्म होगी ddx of a ux. So a is constant outside so it is a derivative of ux which is equal to t of ux. So two properties जो दोनों properties थी this is 1 and this is 2 of linear transformation is satisfied. So t is linear transformation or it is on the from the same vector space to same vector space so it is linear operator. So hence t is a linear operator on P set of all polynomials. Next question, let V be the vector space over field of reals vector space of all integrable function on reals. So vector space में क्या पढ़े हैं all integrable functions. Define transformation from V to R. V is vector space containing all integral function defined on reals. R is set of reals such that T of any function means transformation अगर हम किसी function पे लगाएं एलिमेंट ऑफ v में क्या पढ़े हैं ऑल द फंक्शन. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इंटेग्रल करेंगे और इट इज़ बिटवीन द फाइनाइट लिमिट्स सो हमें कोई नंबर मिलेगा. तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि जो वेक्टर स्पेस है उसकी आउटपुट जब हम उस पर ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं तो यू विल गेट रियल नंबर. सो यू विल गेट अ रियल नंबर हेयर व्हेन यू डिफ्रेंशिएट. सपोज आपके पास एक्स स्क्वायर है आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो फ्रॉम 1 to 2. सो what will you get x cube upon 3 और 1 to 2 आप लिमिट्स डालोगे तो you will get a real number. So that is why it is taken as t v to r any real number. So जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे it is integrable 1 to a to b fx dx which will give you a real number. and अगर आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है अब r यहाँ पे क्या है it is vector space over field of reals.
सो अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन किसी वेक्टर स्पेस से फील्ड पे है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शनल. सो यू हैव टू प्रूव नाउ टी इज लीनियर फंक्शनल. सो प्रॉपर्टीज वही सेम है, लीनियर ऑपरेटर प्रूव करने के लिए भी, लीनियर फंक्शनल प्रूव करने के लिए भी. क्या आपके पास दो एलिमेंट लोगे आप वेक्टर स्पेस में, सो u प्लस वी ऑफ t इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, और दूसरा t ऑफ ए यू इज इक्वल टू a टाइम्स t ऑफ u, वेर u बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, u एंड v ऑल्सो बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस. सो वेक्टर स्पेस से, अगर वेक्टर स्पेस से हम दो कोई भी एलिमेंट्स उठा लें तो यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है उसमें इंटेग्रेबल फंक्शंस पड़े हुए हैं. ठीक है, इंटेग्रेबल फंक्शंस जिनकी इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट f1 f2 बी द टू फंक्शंस बिलोंग्स टू v. सो t ऑफ f1 प्लस f2, अब t जब f1 प्लस f2 पे लगेगी तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, f की जगह f1x प्लस f2x dx. ठीक है, इसको देख के हमने इसको राइट डाउन किया. सो अब आप इंटीग्रेशन को भी हम, एडिशन का साइन बीच में है तो आप क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. सो इट इज a टू b इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेशन a टू b f2x dx. व्हाट इज इंटीग्रेशन a टू b f1x dx? सो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1, और what is integration of a to b f2x dx? So it is transformation of f2. So this is transformation of f1 plus transformation of f2. So t of f1 f plus f2 is equal to t of f1 plus t of f2. So first property of linear transformation satisfied. So next property is transformation a f1 is equal to a to b a of f1 x dx. A constant outside the integration, a to b f1x dx. What is a to b f1x dx? T of f1. So t of a f1 is equal to a of t f1. So second property is also satisfied. So t is a लीनियर फंक्शनल. तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, लीनियर फंक्शनल, क्योंकि जो t है वो डिफाइन हो रहा है वेक्टर स्पेस से फील्ड पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट द फंक्शन t r क्यूब टू r स्क्वायर डिफाइंड बाय t ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2z कॉमा x प्लस जेड प्लस 1 इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर, इसको मैंने टू वे आउट से आपको समझाया हुआ है. फर्स्ट, अब आपके पास, पहले आप इसको नोटिस करो, आर क्यूब से आर स्क्वायर. सो आर क्यूब के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे आर क्रॉस आर मीन्स ट्रिपलेट. सो आर क्यूब के जो एलिमेंट्स होंगे, अगर यू वी हम आर क्यूब में से लेंगे तो यू किस टाइप का होगा, x1 y1 z1, और v किस टाइप का होगा, x2 y2 z2. से दे बिलोंग्स टू आर क्यूब. अब ट्रांसफॉर्मेशन जब इन पे लगती है तो आपको एलिमेंट किसका मिलना है, आर स्क्वायर का. आर स्क्वायर मीन्स ऑर्डर पेयर. सो इट इज़ ऑफ द टाइप x1 x2. ठीक है, इस तरह का कोई एलिमेंट, या xy टाइप का. सो लेट अस नाउ प्रूव दैट दिस इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो वन ऑफ द टू प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होती हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगी. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड u प्लस वी. जब हम करते हैं सो इट इज़ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2. सो t ऑफ u क्या है, t ऑफ u, दिस इज t ऑफ u. u इज़ x1 y1 z1. इसको देखते हुए आपने t ऑफ u लिखना है. सो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चेंजेस हैं, x प्लस वाई प्लस 2z. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, x1 प्लस y1 प्लस 2z1, और सेकंड एलिमेंट कैसे लिखना है, x प्लस z प्लस 1. सो सेकंड एलिमेंट आएगा x1 प्लस z1 प्लस 1. इसी तरह t ऑफ v क्या आएगा, x2 y2 z2 विच इज़ इक्वल टू x2 y2 प्लस 2z2 x2 z2 प्लस 1. ठीक है, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है उसको देखते हुए आपने t ऑफ u लिखा, t ऑफ v लिखा. अब t ऑफ u प्लस v, दिस इज u प्लस v. सो इट इज़ t ऑफ x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा z1 प्लस z2. तो क्या आएगा, पहले दो एलिमेंट्स ऐड प्लस 2 टाइम्स दिस थर्ड एलिमेंट. सो पहले दो एलिमेंट्स को ऐड किया, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2, और ट्वाइस द थर्ड एलिमेंट 2 ऑफ z1 प्लस 2 ऑफ z2. और नेक्स्ट में आपके पास क्या हुआ, फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया प्लस 1 किया. सो फर्स्ट इज x1 प्लस x2, उसमें थर्ड को ऐड किया प्लस z1 प्लस z2, और उसमें 1 ऐड किया. तो इस तरह हमने लिखा t ऑफ u प्लस v. अगर आप चेक करो t ऑफ u प्लस v को ऐड करो तो व्हाट विल यू गेट, x1 y1 2z1 प्लस x2 y2 2z2. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट तो सेम आ गया. सेकेंड एलिमेंट में क्या आएगा, x1 z1 प्लस x2 z2
प्लस 2। सो प्रॉब्लम कहाँ आई, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे क्या आ गया 2। सो अगर आप यहाँ पे देखो t ऑफ u प्लस वी इज़ नॉट इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v। सो t इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको करने का और एक वे आउट और है, हम लेट अस सपोज हम कोई भी एलिमेंट ले लें, u ले लेते हैं 1 0 0 और v ले लेते हैं 0 1 0। सो u t ऑफ u 1 0 0 इज़ 1 2, ठीक है, वैल्यू डाल दो यहाँ पे t 1 0, x1 1, y1 0, z1 0। सो ये क्या आ जाएगा 1 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 और यहाँ पे 1, दिस इज़ 0 दिस इज़ 0। सो इट इज़ 1 2। अब t ऑफ 1 0 0 1 0 निकालोगे तो इट इज़ 1 1, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो u प्लस v को, तो ऐड करने पे क्या आएगा 1 1 0। सो इट इज़ 1 1 0। अब यहाँ पे डालो 1 1 0, सो ये आएगा 2 और ये भी आ जाएगा 2। सो दिस इज़ t ऑफ u प्लस v एंड दिस इज़ t ऑफ u, दिस इज़ t ऑफ v। तो आप अगर देखो t ऑफ u प्लस v को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ 1 2 प्लस 1 1। सो इट इज़ 2 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 2 2। सो t ऑफ 1 1 0 इज़ नॉट इक्वल टू t ऑफ 1 0 0 प्लस t ऑफ 0 1 0। आप कोई और एलिमेंट भी ले सकते हो इसको प्रूव करने के लिए। मैंने 1 0 0 लिया और 0 1 0 लिया, आप कोई और एलिमेंट लेके इसको करोगे और मुझे सेंड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज t डिफाइन ऑन r स्क्वायर टू r डिफाइंड बाय t ऑफ xy इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3y। सो वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। सो जब भी मॉडुलस के क्वेश्चन आपके पास आते हैं आप कोई काउंटर एग्जांपल ले लो, क्योंकि जनरली इन केसेस में जो आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो नहीं होती है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। सो हमने यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल लिया, u को ले लिया -1 0 और v को ले लिया 1 -2। सो लेट अस चेक t ऑफ u। t ऑफ u क्या आ गया, t ऑफ -1 0। सो यहाँ पे जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया इट इज़ 2। नेक्स्ट t ऑफ v हमारे पास आ गया t ऑफ 1 -2। सो इट इज़ 2 + 6 इज़ 8। अब हमने t ऑफ u प्लस v निकाला, u और v को जब ऐड करोगे दिस इज़ -1 + 1 इज़ 0, दिस इज़ 2 0 -2 इज़ -2। सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट t ऑफ 0 -2। अब ये यहाँ पे आप अप्लाई करो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये क्या आ जाएगा 0 + 6, सो इट इज़ 6। अगर आप चेक करो तो t ऑफ u प्लस 1 इज u प्लस v इज 6, बट t ऑफ u प्लस t ऑफ v इज 10। सो दे आर नॉट इक्वल, सो t इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपने u और v कुछ और चूज़ करना है और प्रूव करोगे कि दिस इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी और u और v की वैल्यू से ये सेम क्वेश्चन आप करोगे और मुझे सेंड करोगे। So this is all about today's lecture. So thank you for watching the video.